हेलो बच्चों, हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ फन विद फिजिक्स ओलंपियाड। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें बहुत टाइम हो चुका है। वी आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ वीडियोस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर liking our videos and commenting on our videos, and I am receiving lots of queries on our email which we give for the homework questions, and we are thankful for all the तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया जिस तरह से आप सब हमें अपने रिस्पॉन्सेज भेज रहे हैं। ठीक है, and guys, the purpose of this, like all the videos, is now fulfilled. Like we are receiving the genuine candidates which can bring the gold for our country. Okay, तो आप देख सकते हैं कि जो मिशन है हमारा, आज भी हम उस मिशन पे डटे हुए हैं और वो मिशन एक ही है कि क्या हम हमारे देश में गोल्ड लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टुडे आल्सो आई एम गिविंग यू फ्यू अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन स्प्रिंग्स के ऊपर बहुत अच्छे सवाल हैं। बट बिफोर डूइंग दैट, जैसा कि क्विक इन एवरी वीडियो आई डू इट, like we have in VOS INPHO batches, we have NACP batches, and these batches will help you to prepare for JEE Olympiads KVPY, and for KVPY we are also launching a new separate batch, and notification you will receive very soon. Erode questions, Pathfinder, these kind of questions we do. Okay, because in every video we have new candidates, so I wanted everyone to know that what we are doing here, and we do the questions of previous year Olympiads of different countries also. ओके, एंड दिस इज द लोड इन अ वीक। लाइक आपका नॉर्मल प्रिपरेशन जो जेई का है वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट विल बी 30 to 35 क्वेश्चंस ऑफ लोड विल बी देयर। एंड स्टूडेंट्स, यस डेफिनेटली, एनी क्वेरी यू गाइज वांट, दैट वी हैव दिस ईमेल आईडी physics.vos@gmail.com। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों को है तो physics.vos@gmail.com पे आप उसको हम पे पहुंच सकते हैं। एंड एट द एवरी एंड ऑफ द वीडियो देयर इज सम होमवर्क क्वेश्चन, सो यू गाइस कैन सेंड अस द सॉल्यूशंस and we can receive the subjective solutions at this email ID. Okay, this is an INPHO batch for +1, and similarly we have INPHO batch for +2. All the things are the same, and again what I can say, just focus on this email ID physics.vos@gmail.com. okay, so now students, let's start with few questions. I have very beautiful question for all of you. Really, you guys will like it, and it is one of the unique questions I can challenge you that you have seen in the topic of laws of motion. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन द अरेंजमेंट शोन द स्प्रिंग्स K1 दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर एंड K2 दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो गाइस, हियर वी हैव K2, द वैल्यू ऑफ K2 इज 100 न्यूटन पर मीटर एंड द वैल्यू ऑफ K1 इज 200 न्यूटन पर मीटर, और यू कैन से K1 इज डबल ऑफ K2, सो K1 इज 2K2। ठीक है ना, ये भी अपने को गिवन है। ठीक है, they are given and the pulleys are light and there is no friction at their axle. So pulley light है, उनके बीच में कोई friction नहीं है। There is a block of mass 8 kg, है ना, there is a block of 8 kg and we have suspended that block from all the pulleys and initially held at rest by maintaining strings vertical straight and springs relaxed. Okay, so initially what happened, you can say everything was at natural length. So extension here is 0, the extension here is 0, है ना, सारा जो स्टेट था वो अपना नॉर्मल नेचुरल स्टेट पे था, और मैंने इसके नीचे आई हैव गिवन माई हैंड, है ना, हमने हाथ रखा है और हाथ के साथ हमने उसको पकड़ के रखा है, उसको होल्ड करके रखा है। अब आप देखिए क्या हो रहा है। नाउ द फोर्स सपोर्टिंग द ब्लॉक इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। नाउ आई हैव रिड्यूस्ड द फोर्स एंड एज अ रिजल्ट यू नो दैट ब्लॉक विल फॉल डाउन, बट आई एम डूइंग इट वेरी स्लोली, eventually removed. Gradually means slowly. Okay, and you can see that the block hangs motionless in the equilibrium. Okay, so slowly हमने इसको reduce किया and finally the block will go down and this will be in equilibrium. ये आपका जो block है नीचे जाके वो आपका rest पे रहा। So the question is, now it is at motionless, so the question is how far does the block descend during the process of reduction of force. Now the question is how much this length x the block has fallen down during the process of reduction of force. So what the question is, आपने बच्चों उसके नीचे अपना हाथ दिया हुआ है, आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है और आप स्लोली अपना हाथ आप रिमूव कर रहे हो, आप नीचे लेके जा रहे हो एंड इवेंचुअली यू आर रिमूविंग योर हैंड। ओके, सो देयर डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक नीड्स टू बी फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ओके, तो डिजाइन लॉजिक, व्हाट आई कैन से, लॉजिक बनाइए, सोचिए, थिंक, पॉज दिस वीडियो। ओके, सोचिए, लॉजिक लगाइए, दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस करिए। K2 आपका 2K1 है, सॉरी जो K1 है वो आपका 2K2 है और K2 की वैल्यू आपकी 100 है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, फोर्सेस लिखो इक्विलिब्रियम पे, पॉज दिस वीडियो एंड देन आई एम
कमिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। आई होप आप सबने अपना थॉट दिया है। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। सो गाइस लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो दिस इज एन 8 kg, ओके। सो आई रिपीट, K1 जो था वो 2 K2 था एंड द वैल्यू ऑफ K2 वाज 100 न्यूटन पर मीटर, ओके, ठीक है। सो गाइस दिस वाज 80, ओके। आप देखिए ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो गया, stretches by let's say x1 and guys this spring stretches by x2, so I am assuming वो जो स्प्रिंग है वो x2 से स्ट्रेच हो गया और वो वाला जो स्प्रिंग है वो x1 से स्ट्रेच हो गया। तो थिंग गाइस क्या क्या आएगा आपका, सो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, दैट इज K1 x1, ओके। इधर जो फोर्स आएगा बेटा वो कितना आएगा, दैट इज K1 x1। सो आई गेस यहाँ पे जो फोर्स आपको दिखेगा K1 x1 का डबल दिखेगा, 2K1 into x1 and that will be balancing 8 kg का जो आपका निकल के आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। So yes, so what we have concluded that 2K1 into x1 will balance my weight, that is 80, ठीक है। 2K1 x1 जो है आपका 80 को बैलेंस कर लेगा। So x1 is 80 upon 2K1, so x1 is how much, that is 80 upon 2K1 एंड गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, K1 जो है वो 2K2 है, मतलब वो 200 है, K2 की वैल्यू 100 है। तो ये जो आंसर आपका बेटा आएगा वो मीटर में आएगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे मेरा आंसर सेंटीमीटर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये सारा सेटअप, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 से यहाँ पे ये कट के डायरेक्ट 20 आएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड पे, x1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नथिंग, simply 21 centimeter. So the first spring stretches by 21 centimeter. ठीक है। And now guys, if this elongation is x2, if this spring stretches by x2, इस spring की अगर बात करें, अगर ये x2 stretch हुआ तो यहाँ से जो force आएगी वो कितनी आएगी बेटा, that is K2 x2, और यहाँ से जो force आएगी वो कितनी आएगी, that is also K2 x2, because पुली आपकी massless है, और यहाँ से जो force नीचे जाएगी वो कितनी जाएगी, that is K1 into x1, तो that is a single string, तो K1 x1 आपका यहाँ पे रहेगा। तो गाइज व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन विच यू गाइज कैन राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे K2 x2 आपको ऊपर को लग रहा है, इज इक्वल टू K1 x1, ठीक है। 2K2 x2 इज इक्वल टू K1 x1, तो 2K2 का वैल्यू आप डाल दीजिए 100 इंटू x2 इज इक्वल टू K1 जो है बेटा वो खुद 2K2 है, मतलब दैट इज इक्वल टू 200 इंटू x1। तो गाइस आप देख सकते हैं 200 से 200 आपका कट गया, x2 इज इक्वल टू x1, मतलब एलोंगेशन जो है वो इसमें भी सेम है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। पर बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि व्हाट आर द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग्स, दैट वुड हैव बीन एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ये जो ब्लॉक है 8 kg वाला ये कितना नीचे गिरा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो नाउ गाइज लिसन केयरफुली, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। ये सेटअप था हमारे पास बच्चों, ये पॉइंट आपका फिक्स है, ये जो लेंथ नीचे गिरा वो गिरा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये जो गिरा ये गिरा 0, तो मतलब ये जो पुली होगी ये कितना नीचे गिरेगी, दैट पुली विल फॉल बाय डिस्टेंस ऑफ 0, डिस्टेंस मूव्ड बाय, कर देता हूं, फर्स्ट पुली XP1 जो पुली नीचे गिरेगी तो वो गिरेगी एवरेज 0 + 20/2, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर एक आर्म x1 गिरती है एक आर्म x2 गिरती है तो जो पुली का डिस्टेंस फॉल होता है वो होता है x1 + x2/2। सो XP1 गाइस कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। तो पहली पुली जो डिस्टेंस गिरेगी वो 10 सेंटीमीटर के आसपास गिरेगी। एंड नाउ गाइस अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, नाउ मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस हैज फॉलन अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आप बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर इसके आगे का हम मोशन डिस्कस करें तो आगे क्या हो रहा है, आगे गाइस ये आपका फिर एक पुली पे जा रहा है, ओके, एंड दैट इज अगेन विद द स्प्रिंग हियर। सो ये गिरा 10 सेंटीमीटर, ये गिरा कितना बच्चों, दिस हैज फॉलन अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये भी हमने निकाला, ये जो स्ट्रेचिंग आई x1 की वैल्यू जो गिरी वो कितनी गिरी, वो गिरी 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज 20
दिस हैज फॉलन ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो जो सेकंड पुली गिरेगी xp2, मैं उसका वैल्यू भी निकाल सकता हूं। कितना आएगा वो वैल्यू? हाँ जी, दिख रहा होगा आप सबको बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xp2? दैट इज दिस डिस्टेंस 10 प्लस 20/2, तो वो 10 और 20 का एवरेज होगा, एंड xp2 कम्स आउट टू बी गाइस 15 सेंटीमीटर, 30/2। सो गाइस जितना ये डिस्टेंस पुली गिरेगी उतना ही डिस्टेंस वो 8 kg गिरेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल स्ट्रिंग। सो गाइस द आंसर इज 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। सो है ना बच्चों शानदार क्वेश्चन। देखिए आपने बहुत कम इसको ट्राई किया होगा इस तरह की कैटेगरीज को, बट इस तरह की कैटेगरीज आजकल एडवांस भी बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा एम्स में भी जो 2018 का साल था उसमें ऐसा सवाल एक पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बड़ा अच्छा लगा आप सबसे सवाल डिस्कस करके। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, ये तो वही हो गया। तो हाँ जी, अगेन गाइस बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप सभी इसको रीड करिए, अच्छी तरह थरोली रीड करिए, फिर मैं इसके साथ आपको डिस्कस करता हूं। So guys, there is a system and there are two springs S1 and S2. They have force constant K each. दोनों का जो force constant है वो K के बराबर है। And springs are all massless. सब जो है इसके अंदर वो massless है। And the system is in equilibrium when spring S1 is stretched and S2 is relaxed. So guys, क्या है इसके अंदर? दोनों का spring constant same है K, और ये जो सिस्टम था ये रिलैक्स्ड पोजीशन पे था, इसके अंदर कोई elongation नहीं था, और ये जो था x = 0, ये कुछ x0 स्ट्रेच्ड था। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स आ रही थी वो किसके बराबर थी? वो थी kx0, और जो कि mg के बराबर था। क्यों मैं mg के बराबर कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो टेंशन थी स्ट्रिंग में वो 0 थी, बिकॉज यहाँ पे जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं थी, नो फोर्स, तो मतलब पुली पे भी कोई फोर्स आपकी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कोई नहीं आएगी। सो दैट वाज गिवन in the question. ठीक है, there was initial some elongation. Now what is the beauty of the equation? The beauty of the equation is now the end A of the string is pulled down slowly through distance 50 centimeter. Now this end is pulled down by a length of 50 centimeter. ये बहुत बढ़िया सवाल है। 50 सेंटीमीटर नीचे उस पॉइंट A को हमने खिसकाया। So the question is by what distance does the block of mass m move? So the question ये है, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कितना नीचे गिरेगा, दैट इज द वैल्यू व्हिच बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सो बच्चों डेटा सारा आपके सामने है। इनिशियल एलोंगेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप देखते रहिए बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखें जरा इसको। आपको इनिशियल एलोंगेशन गिवन है, दैट इज kx0 जो कि mg के बराबर है, kx0 = mg। टेंशन जो थी वो आपकी 0 के बराबर थी। अब सवाल ये है कि आपने इसको अगर 50 सेंटीमीटर पुश किया तो ये जो ब्लॉक्स है ये कितना नीचे आया होगा। तो मैं गाइस प्रॉमिस करता हूँ ये बहुत प्यारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही होगी। ठीक है, तो थॉट दीजिए। आई होप आप सबने एक बार थॉट दे लिया है, एंड नाउ आई गेस आई कैन स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं लेट्स से द बॉल फॉल्स बाय डिस्टेंस x, मैं मान लेता हूँ जो बॉल है वो x डिस्टेंस फॉल किया है। ठीक है, तो सॉरी जो मास है वो x फॉल किया है, तो बेसिकली ये जो पुली होगी ये पुली भी x नीचे गिरेगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, मेरी बात को आप समझिए। अगर मास x नीचे गिरा है तो मतलब पुली भी जो है वो x नीचे गिरी होगी। मतलब यहाँ पे जो फोर्स अब आ रही होगी, मैं ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर कुछ बना देता हूँ फोर्सेस। मतलब यहाँ पे जो फोर्स अब आएगी स्प्रिंग की वो आएगी k of x + x0। x0 पहले से था और kx0 जो था वो mg के बराबर था। ये इनिशियल कंडीशन थी आपकी। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा। दूसरा आपका वेट आ जाएगा। स्प्रिंग x0 स्ट्रेच था, x और स्ट्रेच हो जाएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगी k of x + x0 आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा आप थोड़ा सा इस बात को समझिए। अगर आपने इसको एंड A को, ठीक है, 50 सेंटीमीटर नीचे पुश किया है, ठीक है, तो लेट्स से यहां से जो स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचेस बाय x डैश, तो बेसिकली ये जो स्प्रिंग है ये वाला दिस स्प्रिंग, ये उस तरफ से x डैश स्ट्रेच हो गया।
मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। तो अगर वो बेटा एक्स डैश स्ट्रेच हुआ, क्योंकि जब आप उसको पुल करोगे यहां से नीचे, है ना, अगर आप उस साइड से उसको पुल करोगे तो दूसरी साइड से जो स्प्रिंग है वो एक्स डैश आपका स्ट्रेच होगा। तो बेसिकली बेटा यहां से जो स्प्रिंग की फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज के एक्स डैश। यहां से जो स्प्रिंग की फोर्स आएगी ये कितनी आएगी, दैट इज ऑल्सो के एक्स डैश। तो बेटा आप सब देख सकते हैं ये वाली जो फोर्स आएगी ये कितनी आएगी, दैट इज 2k एक्स डैश। और बेटा ये वाली जो फोर्स नीचे आएगी दैट इज ऑल्सो 2k इंटू एक्स डैश। तो गाइस अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखें, ध्यान से अगर आप इक्वेशन को वॉच करें, ठीक है, बहुत प्यारी सी इक्वेशन आपकी बनेगी। मैं फिर ये बात बोलता हूँ, आप इस ब्लॉक पे अगर इक्वेशंस को लिखें तो k टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स नॉट जो था वो किसके बराबर था, वो था mg। mg भी ये ऊपर को फोर्स है ये वाला, है ना, और नीचे वाला जो फोर्स है वो है mg प्लस 2k इंटू एक्स डैश। वो जो है वो 2k एक्स डैश जो लग रहा है वो आपका नीचे को लग रहा है। आप इसे बेटा एक्सपेंड कर दीजिए, इट इज kx प्लस kx नॉट इज इक्वल टू mg प्लस 2k इंटू एक्स डैश। और बेटा क्या खुशी की बात है, kx नॉट आपका mg से कट जाएगा और k से k कट जाएगा। तो बेटा x जो है वो 2x डैश के बराबर है। मैं रिपीट करता हूं, x जो है वो 2x डैश के बराबर है। ये मेरी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा बात को ध्यान से सुनिए, ये x गिरा, पुली भी x गिरी, ये 50 गिरा, इधर से ये कुछ अमाउंट स्ट्रेच हो गए, उसे मैं x डैश कह लेता हूं। स्प्रिंग की फोर्स आ गई kx डैश, 2k x डैश नीचे, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फोर्स आई वही k x प्लस एक्स नॉट। मैंने सिंप्लीफाई किया, x जो है वो 2x डैश के बराबर है बेसिकली, है ना, जो x वो है वो 2x डैश के जो है वो उसके बराबर है। तो नाउ गाइस अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है। मैं इस पुली को बना रहा हूं, इस पुली का मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। दिस पुली इज अटैच्ड विद अ बॉक्स, वो ऊपर से एक बॉक्स से अटैच्ड है, ये आपका पॉइंट ए है और इधर आपका बेटा जो लगा है वो स्प्रिंग लगा है, ठीक है। अब जरा दोबारा अगर हम एक बार फिगर को ऑब्जर्व करें बच्चों, तो बड़ा ही प्यारा सेटअप है ये गिर रहा है कितना, 50 सेंटीमीटर। पुली गिरी कितना, पुली उतना गिरी जितना ये मास गिरा। मास कितना गिरा, मास गिरा x, तो पुली जो गिरी वो गिरी x। और जो ये बेटा है ये आपका ऊपर चढ़ा है, इधर से जो स्प्रिंग है वो फैला है, वो आपका ऊपर की तरफ स्ट्रेच हुआ है, तभी उसकी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ आई है, और वो जो स्ट्रेचिंग हुई है वो ये एक्स डैश। तो गाइस व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय पुली, आप याद करिए, द डिस्टेंस मूव्ड बाय पुली इज द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय आर्म्स। बट इस पे कंडीशन होती है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तीनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पुली हियर इज x इज इक्वल टू x1। नाउ x1 किसके बराबर है, वो भी पुली की डायरेक्शन में है, दैट इज 50, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो x डैश है वो इन दोनों की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, वो ऊपर की तरफ है, तो आप साइन यहाँ पे लेंगे माइनस एक्स डैश। सो 50 इधर को, x डैश उधर वाला नेगेटिव बाय 2। तो गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x और x डैश में दो वेरिएबल्स हैं, तो सेकंड इक्वेशन बेटा मेरे सामने ये रही, ठीक है। अब क्वेश्चन में कोई दम बचा नहीं, आप इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 2x इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स डैश, सॉरी 50 माइनस एक्स डैश, और मैं इस एक्स डैश को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, एंड आई कैन सिंप्लीफाई इट हियर। मैं फटाफट उसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बस हो गया है सॉल्व हमारा। ये आप देखिए बच्चों, ये आपके पास आ रहा है 2x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 50। तो 2x आपको x निकालना है, तो x डैश को एलिमिनेट कर दीजिए, तो दैट इज x बाई 2, दैट इज इक्वल टू 50। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5x बाई 2 इज 50, ये आपका यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो x कम्स आउट टू बी गाइस 10, और सॉरी 2 into 10, that is 2 into 10, that is 20 centimeter is the answer. So basically the block will fall by a distance of 20 centimeter, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो आज के क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, एक बार दोबारा आप अपने दिमाग में सारा ये प्रोसेस चलाएं, बड़े पसंद आए होंगे, जिसमें हम किसी ब्लॉक को हिलाने से कोई दूसरा ब्लॉक या कोई पुली कितना डिस्टेंस फॉल या राइज करती है, उन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आज आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स में मैंने कुछ एडिशंस की हैं। और इसी के साथ जाने से पहले हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देते हैं। सवाल आप लिख के भेजें physics.vos@gmail.com पे। तो बच्चों, आप भेजें हमें कुछ सॉल्यूशंस, सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और अगर हमें लगा कि येस देयर इज सम कनेक्शन, वी विल रीच यू। एंड कई बार बेटा हमें टाइम भी लग जाता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड रश जो हमारे पास आ रहा है मेल्स का। तो बट डोंट लूज योर हार्ट, हम आपके पास जरूर आएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको कॉल जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।